Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed financial decision. Financial decisions are concerned with three major decisions which are clearly depicted in the given figure. That is investment decision, financing decision, and dividend decision. Investment decision involves careful selection of areas in which funds are to be invested. Investment decision can be short term or long term. A long term investment decision is called capital busting decision because it involves committing the finance on long term basis, whereas short term investment decision are called working capital decision. These are concerned with the decision about the level of cash, inventories and receivable required to be held by the business for its smooth functioning. There are few factors which affect the capital busting decision, that is the cash flow of the project, the rate of the return, and the investment criteria involved. In the second decision of financial decision, that is the financing decision, the financing decision relates to the relative proportion of various sources of finance. The main source of funds for a business are shareholder funds and borrowed fund. So, with the help of financing decision, we decide the proportion of the fund to be raised from source which serve the purpose most effectively. So, financing decision is concerned with how much finance is to be raised from which source. Financing decision affects the following factors, that is cost, risk, flotation cost, cash flow position of the company, fixed operating cost, control consideration, state of capital market, rate of investment, tax rate, flexibility, and regulatory framework. In today's video, we will move to the third and last decision related to the financing decision, that is financial decision, that is dividend decision. The third important decision that every financial management manager has to take relates to the distribution of dividend. This dividend is that portion of profit which is distributed to the shareholder. You know very well, with the help of investment decision हम ये डिस्कस करते हैं कि पैसा हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करना है. अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं, और शॉर्ट टर्म में करते हैं तो उसको डे टू डे एक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन. वेयर इज़ अ सेकंड डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस सोर्स से पैसा लेना है और कितना लेना है. बेसिकली दे आर टू सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस, दैट इज़ अ इक्विटी फंड और बोरोड फंड. वहीं डिविडेंड डिसीजन जो थर्ड डिसीजन है वो हमको ये बताता है कि जो हमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम कैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जब हम फाइनेंस करेंगे तो हम कॉस्ट बियर करेंगे, जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा. सो फाइनेंस कॉस्ट से हम जितना ज़्यादा रिटर्न अर्न करेंगे उतनी हमारी प्रॉफिट होगी. तो हर मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये डिसाइड करे कि वो अपने डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. डिविडेंड का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट ऑन शेयर. यू नो वेरी वेल what is the meaning of dividend? The profit on share provided by the company to its shareholder. This decision concerned with ascertaining how much of the profit earned by the company is to be distributed among shareholder and how much of it should be retained in the business. यानी डिविडेंड डिसीजन की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि कंपनी ये डिसीजन लेती है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा, कितना पार्ट हमें शेयर होल्डर को बांटना है और कितना पैसा हमें फर्म अपने पास रिटेन करके रखेगी. So what is dividend decision? Dividend decision is concerned with the ascertaining how much of the profit earned by the company is to be distributed among the shareholder and how much of it should be retained in the business. So the following factors which affect the dividend decision, the main factor affecting dividend decision are discussed below. The first one is amount of earning. Dividend are paid off a current and past earning. Thus earning is a major determinant of dividend डिसीजन. यस, हम कितना अर्न कर रहे हैं ये डिविडेंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो हम डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज डिविडेंड इज़ अ एप्रोप्रिएशन, इट इज़ नॉट ए चार्ज. सो डिविडेंड हम तभी पे करते हैं जब हमें अर्निंग होती है. लॉस के केस में हम डिविडेंड नहीं पे करते. सो बेसिकली डिविडेंड
जो हम पे करते हैं वो करंट और पास्ट अर्निंग के बेसिस पे करते हैं। सो अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे डिविडेंड को डिसाइड करता है। सेकेंड वन इज स्टेबिलिटी इन अर्निंग। A company having higher and stable earning can declare higher dividends and then a company with lower and unstable earning. सो डिविडेंड का जो रेट होता है वो कंपनियां अपना डिविडेंड का रेट ज़्यादा देती हैं जहाँ पे उनका डिविडेंड जो है, अर्निंग जो है वो स्टेबल होती है और हायर होती है। लेकिन जब कोई कंपनी का डिविडेंड का जो रेट है, मींस अर्निंग का जो रेट है वो कम होता है, तो वहाँ पे वो डिविडेंड का रेट कम रखती है। Stability of dividend. Generally, companies try to stabilize dividend per share. A steady dividend is given each year. A change is only made if the company's earning potential has gone up and not just the earning of the current year. Stability of dividend भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे डिविडेंड को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी ये चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को एक स्टेबल रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करते होते। इसके लिए आपने क्लास 11 के अकाउंटेंसी में पढ़ा भी है। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप का रिजर्व बनाती है कंपनी, दैट इज़ अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। वाई कंपनी क्रिएट अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व? टू प्रोवाइड अ डिविडेंड पर शेयर एट इक्वल रेट एनुअली। यस, आपको याद है, आई वेरी गुड। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी एक फैक्टर होता है जो हमारे डिविडेंड को डिसाइड करता है कि हमने प्रीवियस ईयर 5% का डिविडेंड दिया, इस साल भी हम 5% तक का ही डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि डिविडेंड में अगर हम अप्स एंड डाउन्स रखते हैं सो कहीं ना कहीं वो कंपनी की हेल्थ के लिए एज वेल एज द ओनर्स की हेल्थ के लिए सही नहीं होता। क्योंकि अगर हम एक स्टेबल रेट से डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं करने। और हमें डिविडेंड का रेट तभी बढ़ाना चाहिए जब हमारा जो रेट है, जो अर्निंग का रेट है वो काफ़ी हाई हो जाए, तब उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अगर डिविडेंड का रेट स्टेबल है सो हमें एक फ़ायदा होगा कि हम शेयर होल्डर्स को इतना पता है कि कम से कम इतना तो मिलेगा। और जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो कंपनी उस प्रॉफिट को बचा के इन फ्यूचर में रख सकती है कि कभी मान लीजिए कि हमें लॉस हो गया, सपोज़ कंपनी सफ़र्स फ्रॉम द लॉस, तो कंपनी उस लॉस के सिचुएशन में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट की सिचुएशन से जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया गया है उससे डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। जो नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डिविडेंड डिसीजन बिकॉज companies having good growth opportunity retain more money out of their earning so as to finance the required investment. Therefore, the dividend declared in the growth companies is smaller than that in the non-growth companies. यानी जो कंपनीज ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं उनके डिविडेंड का रेट हाई रहता है, बट जो कंपनी की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ग्रो करना चाहती हैं, यानी अभी वो मार्केट में और सर्वाइव करना चाहती हैं और ऊपर जाना चाहती हैं, तो सिचुएशन में वो अपने प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा रिटेन कर लेती हैं, उसे फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं। दैट इज़ नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजिशंस। डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इज नेसेसरी फॉर पेमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। येस, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट यू नो वेरी वेल डिविडेंड पेड इन कैश ओनली। इन इंडिया में अगर हम बात करें तो डिविडेंड को हम कैश में पे करते हैं। सो कंपनी के पास प्रॉपर इनफ कैश होना चाहिए डिविडेंड पे करने के लिए। तो इसके लिए कैश फ्लो पोजीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। अगर कंपनी के पास प्रॉपर इनफ कैश अवेलेबल नहीं है तो वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती, डिविडेंड इशू नहीं कर सकती। द नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर प्रेफरेंस। While declaring dividend, management must keep in the mind the preference of their shareholder. Some shareholders in general desire that at least a certain amount is paid as dividend. The company should consider the preference of such shareholder. Means शेयर होल्डर की भी कुछ प्रेफरेंस होती है, कुछ प्रायिकता होती हैं कि जब वो डिविडेंड डिसाइड करती है तो मैनेजमेंट के मन में ये दिमाग में रहता है कि शेयर होल्डर का क्या प्रेफरेंस है, शेयर होल्डर का क्या सोचना है। क्योंकि कुछ शेयर होल्डर का ये जनरल डिज़ायर होती है कि कुछ सर्टेन अमाउंट उन्हें डिविडेंड के रूप में मिले। वो सर्टेन अमाउंट शेयर होल्डर की तरफ से क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है हमें डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ अ टैक्सेशन पॉलिसी। If the tax on dividend is higher, it is better to pay less by way of dividend. But if the tax rates are low, higher dividend may be declared. This is because as per the current taxation policy, a dividend distribution tax is levied on the companies. However, shareholders prefer higher dividend as dividend are tax free in the hands of shareholder. So अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो डिविडेंड के लिए टैक्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर गवर्नमेंट ने डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स को बढ़ा देता है तो उसके केस में हम लोग
कम से कम डिविडेंड पे करते हैं, और जब हमारा टैक्स रेट कम होता है तो हम डिविडेंड के रेट्स को बढ़ा देते हैं। अगर हम करंट टैक्सेशन पॉलिसी को मॉनिटर करें तो हमारे पास ये आता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो कंपनी के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट पे वो डिविडेंड जो होता है टैक्स फ्री होता है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। सो शेयर होल्डर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, लेकिन व्हेन अ कंपनी प्रोवाइड द डिविडेंड सो उस पर वो टैक्स चार्ज करती है। तो कुछ सर्टेन टैक्स है चाहे कंपनी पे करे, क्योंकि कट तो उनके डिविडेंड से ही रहा है। अगर कंपनी ने 1 लाख रुपये डिविडेंड डिसाइड किया तो जब वो पे करेगी शेयर होल्डर्स को तो उसमें पहले से टैक्सेशन काट के, जो सर्टेन टैक्सेशन है वो काट के गवर्नमेंट को पे करेगा और बाकी पैसा शेयर होल्डर्स को पे करेगी। फिर शेयर होल्डर के पास वो इनकम जाने के बाद टैक्स फ्री इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी उस पर से पहले से टैक्स लग चुका होता है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी जितना टैक्स काटती है डिविडेंड के रूप में, वो डिविडेंड के रूप में जितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है उसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है, और फिर टैक्स चार्ज करने के बाद वो पैसा गवर्नमेंट को दे देती है। सो बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज़ द मोस्ट important part to declare a dividend. Next one is stock market reaction. Generally, an increase in the dividend has a positive impact on the stock market and vice versa. Thus, while deciding on dividend, this should be kept in mind. So, जब हम जो कंपनी स्टॉक मार्केट को कंसिडर करती है तो स्टॉक मार्केट को भी फोकस करके हिसाब से ही वो डिविडेंड को डिसाइड करती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट का रिएक्शन जो होता है डिविडेंड को लेके काफ़ी पॉजिटिव होता है। यानी अगर कोई कंपनी हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती है सो इस केस में स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर डिविडेंड का रेट लो होता है तो स्टॉक मार्केट पे कंपनी का जो रिएक्शन होता है, जो कंपनी के लिए रिएक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि जब कोई कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है मार्केट में तो सिचुएशन में कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होती है, डिमांड बढ़ती है, दैट्स वाई इंक्रीज़ होती है। सो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर कंपनी चाहती है कि अपने शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ करना चाहती है, उसका डिमांड बढ़ाना चाहती है, सो उस केस में उसे डिविडेंड का रेट हाई करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. Large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on retained earning to finance their growth. Their companies tend to pay higher dividend than the smaller companies. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम डिविडेंड जब डिसाइड करते हैं तो जो बड़ी कंपनी, रेपुटेड कंपनीज होती हैं वो ईज़िली कैपिटल मार्केट को एसेस कर सकती हैं, इसलिए वो रिटेन अर्निंग पे ज़्यादा बेस नहीं करती। व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म मार्केट होता है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म वे में फंड अरेंज कर सकते हो, सो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड्स शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड अरेंज कर सकते हो। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट पे ज़्यादा डिपेंडेबल होती हैं, सो उनके पास रिटेन अर्निंग पे ज़्यादा उनकी डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। सो उस केस में उनका रेट ऑफ डिविडेंड हाई होता है। रही बात छोटी कंपनीज़ के बाद, तो छोटी कंपनीज़ का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कम होता है क्योंकि स्मॉलर कंपनीज़ के पास कैपिटल मार्केट का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। कैपिटल मार्केट उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, या उनकी पकड़ नहीं होती कह सकते हो। सो दैट्स वाई वो अपने रिटेन अर्निंग पे ज़्यादा बेसिस करते हैं। इसलिए आप जब छोटे मोटे बिजनेसमैन को देखते हो तो वो अपनी प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। बट बड़ी कंपनी जो होती हैं अपने शेयर होल्डर्स को खुश भी रखती हैं और कैपिटल मार्केट पर ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी भी होती है। लीगल कॉन्स्टेंट्स. Certain provision of the Companies Act place restriction on payouts as a dividend. Such provision must be adhered to while declaring the dividend. कुछ लीगल बाधाएं हैं, लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं। वो क्या है कि कंपनीज एक्ट में कुछ सारे प्रोविज़न्स हैं कि जहाँ पर कंपनी इससे ज़्यादा का पे आउट नहीं कर सकती। पे आउट का मतलब है कि अगर कंपनी 100 रुपये प्रॉफिट अर्न करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% ही एज अ डिविडेंड बांट सकती है, तो 50% वो पैसा नहीं बांट सकती। सो पे आउट रेशियो का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द अर्निंग प्रॉफिट। सो पे आउट रेशियो का भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस होती है जो कहीं ना कहीं हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस को या डिविडेंड डिसीजन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेंट्रेट। ये भी इफेक्ट करता है। वाइल
granting loans to a company, sometimes a lender may impose certain restriction on the payment of dividend in future. The companies are required to ensure that the dividend payout does not violate the terms of the loan agreement in this regard. So जब कभी ना कभी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब हमारे शेयर होल्डर्स से हो चाहे हमारे इन्वेस्टर्स से हो, हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है उनसे कि हम इतना रेट ऑफ डिविडेंड उनको प्रोवाइड करेंगे. सो कहीं ना कहीं हमारा जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल फिगर से भी इफेक्ट करता है कि हमने किसी पार्टी से इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट किया और उन्होंने हमारे ओनर्स कैपिटल में इन्वेस्ट किया और उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि आपको इतना पे आउट करना है, आप उस टर्म को वायलेट नहीं कर सकते. तो कभी कंपनी को अगर रिटेन अर्निंग की आवश्यकता होगी भी तो वो पैसा रिटेन अर्निंग के रूप में नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें कम से कम इतना पैसा तो ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि जो लॉ हमको बाउंड करता है कि आपको इतना पे आउट करना है आउट ऑफ द फ्रॉम द अर्निंग प्रॉफिट. बट कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्टेंट्स हमें कॉन्ट्रैक्ट बाउंड करता है कि हमें अपनी अर्निंग प्रॉफिट में से इतना डिविडेंड पे करना है. सो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हमें कम पे आउट्स की रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्म में पैसा री इन्वेस्ट करिए, कंपनी में री इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कंपनी का ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है नेशन का ग्रोथ होगा. बट कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअल बेनिफिट्स हों. सो कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ इन्वेस्ट करती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करती है. सो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है वो हमारे पे आउट रेशियो को इंक्रीज़ करने की बात करता है. सो हमारे डिविडेंड डिसीजन भी कहीं ना कहीं उस चीज़ों से इफेक्ट होते हैं. सो डिविडेंड डिसीजन का बेसिकली मतलब है कि हमें कितना पैसा प्रॉफिट जितना हमने अर्न किया उसमें से कितना पैसा हमें अपने पास रखना है. अपने पास का मतलब है फर्म में फिर से इन्वेस्ट कर देना है, कंपनी में फिर से लगा देना है, प्लगिंग और बैक ऑफ द प्रॉफिट कर देना है या री इन्वेस्टमेंट कर देना है. बट एंड सेकेंड पार्ट कि कितना पैसा हमें अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड बांट देना है. सो डिविडेंड डिसीजन के कुछ पार्ट्स हम लोगों ने आज देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं. दैट इज़ अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, कैश फ्लो पोजीशन, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसीज, स्टॉक मार्केट reactions, access to capital market, legal constant and contractual constraints. Now we will move to the next topic of today's video, that is the concept of financial planning. What is the concept of financial planning? You know very well कि हम लोग ये चैप्टर का जो हेडिंग है, the first chapter of the part B, that is financial management. So financial planning is a part of the financial management. Management start with the planning and ends with the controlling, and with the help of the last function of the management, that is controlling, we again frame a effective plan for the new types of management, new kinds of the management. So management के जितने भी functions हैं वो कहीं ना कहीं हमको जो स्टार्ट करते हैं वो प्लान से स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं हम कंट्रोलिंग से एंड करते हैं, और कंट्रोलिंग से जो रिजल्ट आते हैं वो हमें एक नया इफेक्टिव प्लान बनाने में हेल्प करते हैं. सो लेट्स डिस्कस इट. कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट of an organizational future operation. In other words, we can say financial planning is a process of estimating the financial requirement of an organization, specifying the source of funds and ensuring that enough funds are available at the right time. It means financial planning का जो objective होता है वो ये होता है कि वो हमारे बिजनेस को ये बताता है या हमारे लोगों को ये बताता है कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे, और इनफ फंड्स राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाने चाहिए, इंश्योर हो जाना चाहिए. इट मीन्स द फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशन के लिए. यू नो वेरी वेल कि ऑर्गेनाइजेशन को इन द फ्यूचर कई सारे काम करने हैं, तो कंपनी फ्यूचर में काम करने के लिए उसे एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा. सो द फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट of an organization future operation, and with the help of financial planning we estimate the financial requirement of an organization, specifying the source of fund and ensuring that the enough funds are available at the right time. It means financial planning एक ऐसा process है
जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कितना सोर्स ऑफ फंड की आवश्यकता है और इनफ फंड राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज it aims at smooth operation by forecasting activities and fund requirement on one hand and analyzing the source of fund generation on the other। यानी इट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग में हम पहले से इस बात का ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए इन फ्यूचर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उस फंड को हम कैसे यूज़ करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व करते हैं। The next heading is objective of financial planning. The two objectives of financial planning are: number one, to ensure availability of fund whenever these are required in order to honor its commitment and carried out operations plan। यानी हमने जो भी कमिटमेंट्स और प्लान ऑपरेशंस प्लान कर लिए कि इन फ्यूचर हमें ये काम करना है, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमें कितने फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑनर इट्स कमिटमेंट एंड कैरी आउट ऑपरेशन एज प्लान। यानी हमें फ्यूचर में कोई काम करना है, फ्यूचर में कोई कमिटमेंट्स को कंप्लीट करना है, तो उस टाइम हमारे पास प्रॉपर फंड अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे 1 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, 1 साल बाद मुझे 50,000 रुपीज़ अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। सो आफ्टर 1 ईयर मेरे पास सफिशेंट अमाउंट पे होना चाहिए ताकि हम वो काम कर सकें, हम अपने क्रेडिटर्स को पे कर सकें, यानी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर में होने वाले ऑपरेशंस और फ्यूचर में किए जाने वाले कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फंड अवेलेबल होना चाहिए एट द राइट टाइम। आज मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े, एट द टाइम सफिशेंट फंड्स आर अवेलेबल, एंड दिस इज़ द मेन focus of the financial planning. Second one, to see that the firm does not raise resources unnecessarily, as idle funds raise the cost of finance as well as give way of wasteful expenditure and misuse of funds. फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्म में वो देखे कि कोई भी ऐसा सोर्स ना हो जो अननेसेसरी रेस किया गया। अननेसेसरी मतलब हमने कोई भी 1 रुपये मार्केट से अगर उठाया हो तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी आइडल फंड नहीं होना चाहिए। आइडल फंड के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, क्योंकि हम उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बियर कर रहे हैं, चाहे वो रिटेन अर्निंग ही क्यों ना हो, चाहे वो ओन कैपिटल क्यों ना हो, चाहे वो बोरोड कैपिटल क्यों ना हो, कोई पैसा अननेसेसरी रेज ना किया गया हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है और ये हम फंड का एक मिसयूज़ कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि हम पैसे को रेज ही नहीं किए होते। सो द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी समराइज दिस टॉपिक। द फर्स्ट वन इज financial planning. In short word we can say, in the short meaning, preparation of financial blueprint of an organization future operation. Okay, it is a short answer of financial planning. The second one is the definition of the financial planning. It is a process of estimating the financial requirement of an organization, specifying the source of funds and ensuring that enough funds are available at the right time. Next one is objective of the financial planning. The first one is availability of fund, ensure availability of the fund whenever these are required in order to honor its commitment and carry out operation as planned. And number 2, to see that firm does not raise resource unnecessary, as idle fund raise the cost of finance as well as give way for wasteful expenditure and misuse of funds. The time frame for financial plan. Financial plan are made for both long term as short term. So plans जब भी हम बनाते हैं, financial planning करते हैं, so ये long term and short term दोनों को include करके बनाया जाता है। Long term plans they focus on long term growth and investment methods, यानी long term plans जो होते हैं वो long term ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं और जनरली ये 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम के लिए होते हैं।
and the short term plans, they are also known as the budget and made for a period of the 1 year or less. सो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म मैटर्स इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के चलते हैं, जैसे 3 से 5 साल के बीच में, और शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होते हैं वो जनरली बजट्स के फॉर्म में होते हैं कि हमें 1 साल के अंदर ये कमिटमेंट्स पूरे करने, ये काम करने। सो कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर की बात होती है, वो बजट को डिनोट करते हैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल हमारे देश में भी शॉर्ट टर्म प्लान्स बनते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स यू नो वेरी वेल कि जैसे हम लोग हर साल का बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि इन फ्यूचर में जो हमें फ्यूचर में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है वो राइट टाइम पे अवेलेबल हो, एज़ वेल एज़ अगर हमें एक सर्टेन टाइम में कमिटमेंट करना है, ऑनर्स कमिटमेंट को ऑनर करना है। कमिटमेंट ऑनर करने का मतलब अपनी बात जो हमने कमिटमेंट की है कि 1 साल बाद हम ये करेंगे, 1 साल बाद हम वो करेंगे, तो उसको पूरा करने के लिए प्रॉपर सफिशिएंट फंड होना चाहिए। सो आई होप कि फाइनेंशियल प्लानिंग से आप इतना क्लियर हो गए होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड करता है। ऑल्सो इट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल प्लानिंग, बिकॉज ये सारे फंक्शंस जो हैं, जो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव पढ़े, द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी डिस्कस इन द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। ओके, सो एंड इसके अलावा भी फाइनेंशियल मैनेजर के कई काम होते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट वन इज़ importance of financial planning. The importance of financial planning can be explained as follows. The number 1, it helps in forecasting what may happen in future under different business situation. यानी हम ये पता कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये फोरकास्ट कर सकते हैं बिजनेस के सिचुएशंस के रिगार्डिंग। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। यानी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपने फ्यूचर में होने वाले शॉक्स एंड सरप्राइजेस को अवॉइड कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और उनके लिए अभी से प्रिपेयर हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। बिजनेस के कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ओके, it provides a link between investment and financing decision on a continuation basis. Yes, फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं चीज़ों पे फोकस करता है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों के बीच में कॉन्टीन्यूअस बेसिस बना रहे, डिसीजन लगातार होता रहे। पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करो, फिर पैसा कहीं से आ रहा है फिर उसको इन्वेस्ट करो, और रिटर्न अर्न करते करते डिविडेंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। It helps in reducing waste, duplication of efforts and gap in planning. Yes, फाइनेंशियल प्लानिंग्स के हेल्प से हम अपने वेस्ट को कम करते हैं, क्योंकि आइडल फाइनेंस को हम कम करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स का मतलब होता है कि अगर हम एक काम कई बार कर रहे हैं तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। एज़ वेल एज़ प्लान्स के बीच में जो गैप्स है, जो डिफ्रेंशिएशन है, जैसे हमने पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को कॉन्टीन्यूअस बेसिस में रखा जाता है, उनके बीच में लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है। सो प्लानिंग के बीच में जो गैप्स आ रहा है उस गैप्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इट एक्ट्स एज द बेसिस ऑफ कंट्रोल बाय स्पेलिंग आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस बिजनेस सेगमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिस से हम ऑब्जेक्टिव में, बिजनेस के डिफरेंट सेगमेंट्स में जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको स्पेलिंग आउट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कभी ना कभी हमारे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो अचीवेबल होते हैं, कुछ नॉन अचीवेबल होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपने अचीवेबल गोल्स को डिसाइड करते हैं और डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को स्पेलिंग आउट का मतलब होता है करेक्ट करते हैं। हो सकता है वो बिलो स्टैंडर्ड्स हो सकता है वो अबव स्टैंडर्ड्स हो सकता है हमने अपनी कंपनीज़ के रिसोर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया हो सकता है हमने अपने कंपनीज़ के स्टैंडर्ड्स को ओवर एस्टिमेट कर दिया हो। सो इन सारी चीज़ों की हेल्प हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलती है। सो बेसिकली वी कैन से दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड व्हेन वी आर डूइंग अ मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल function of the organization, so firstly we will take a decision regarding the financial planning, and financial planning also includes the two important
objective of the business, that is the ensure availability of funds whenever these are required, and the second one, to see the firm does not raise resource unnecessarily. So I hope कि आज के इस पूरे वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी. द फर्स्ट वन इज़ डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, concept of financial planning, objective of financial planning, time frame of the financial planning, and importance of financial planning. So I hope in today's video we will clear all the doubts very easily. But apart from this, if you have any kinds of doubt relating to this topics, please ask me in online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.